class 10 students. If you like this video, then don't forget to give it a big thumbs up. Do subscribe to my channel for the new updates and also do comments me down कि आपको chapter समझ में आया and also tell me your doubts. This chapter is the easiest chapter of your book, geography book of class 10th. The first chapter name is resources and development. We are already familiar with the resources. So what do you mean by resources? Resources वो सारा material है which is available in our environment जो हमें help करता है to satisfy our needs, to fulfill our requirements which we actually need. Resources are further divided into three parts, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Are resources free gifts of nature? क्या आपको लगता है कि जो resources हैं वो नीचे का free gifts हैं? No, resources कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, बल्कि ये एक काइंड ऑफ मटेरियल है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जिनको यूज़ करके हम रिसोर्स बनाते हैं एंड हम उन्हें टर्न करके उन्हें डेवलप कर देते हैं और बाद में हम उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. ह्यूमन बीइंग का फिज़िकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है जिसके अंदर दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के अंदर. अब नेचर के अंदर जब वो लोग कनेक्ट करेंगे तो किस चीज़ से करेंगे? टेक्नोलॉजी से करेंगे या फिर चीज़ें बनाएंगे, न्यू मशीन्स बनाएंगे नो, ताकि उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ एंड एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सब चीज़ें मिलकर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है. नेक्स्ट हम आते हैं रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन के. तो ये 4 बेसिस पे होती है. तो पहला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट कैन बी बायोटिक और एबायोटिक. सेकेंड वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सो दिस इज़ further divided into 4 parts: individual, community, national and international. Third is on the basis of exhaustibility. So these parts are further divided into 2: renewable and non-renewable. Next, on the basis of status of development, which can be potential, developed, stock or reserve. Now we will talk about them deeply. So on the basis of origin, we have 2 types of resources, which is biotic resource and abiotic resource. Biotic resource क्या होता है? Biotic resource, in short if I say, so these are the living components of an ecosystem. ओके, बायोटिक रिसोर्स वो सारे रिसोर्स होते हैं जो एक्चुअली में लिविंग कंपोनेंट्स हैं. दीज आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर बायोस्फीयर. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, लाइफ स्टॉक एंड एक्सेट्रा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एबायोटिक रिसोर्स, तो ये वो होते हैं इन शॉर्ट नॉन लिविंग components present in an ecosystem. They can be physically or chemically made elements. Okay, for example, rocks and metals. Next we will come to on the basis of exhaustibility. So we have 2 type of resources: renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource होते हैं the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical processes. Basically वो सारे resource जिन्हें हम वापस से renew कर सकते हैं, जिन्हें हम वापस से बना सकते हैं या reproduce कर सकते हैं physical method यूज़ करके, chemical method यूज़ करके या फिर mechanical process यूज़ करके. For example, solar और forest. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. सो ये वो रिसोर्स होते हैं जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो जल्दी से तो रिप्लेनिश नहीं हो सकते, जो जल्दी से वापस से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. Next we will talk about on the basis of ownership. So we have 4 types of resources here. First is individual resource, जो रिसोर्स को पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल ओन करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल पास्चर लैंड, प्लांटेशन, वाटर इन अ वेल, एनी शॉप और समथिंग लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी ओन. सो दिस is kind of a resource which is accessible by all the people living in a particular community or particular society. For example, ponds, parks, picnic spots and etc. Next we will talk about on the basis of ownership. So we have 2 resources: national resource and international resource. What is a national resource, bacha? National resources are always controlled by a nation, or you can say by a particular country. For example, minerals, water, forest, wildlife, oceanic area and many more things. ओके, जो विद इन अ कंट्री है, जिसे सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल रिसोर्स.
इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्स, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री का इंसान दूसरी कंट्री का रिसोर्स यूज़ करे, मतलब जिसके अंदर रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्रीज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स. Okay, these are owned and regulated by international institution or by one or more than two countries. Next, we will come to status of development. So these are further divided into two parts: potential resource and developed resource. What is a potential resource, बच्चा? These resources are found in a region but have been not utilized. ये वो resources होते हैं जो एक region में मिल तो जाते हैं लेकिन इन्हें अभी तक किसी ने भी यूज़ ही नहीं किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विंड एंड सोलर एनर्जी. नेक्स्ट होते हैं डेवलप्ड रिसोर्स. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें सर्वे कर लिया है, जिनके बारे में हमने रिसर्च कर लिया है कि हाँ वी कैन यूटिलाइज देम, और करेंटली अभी यूज़ में भी हैं, बेसिकली डेवलप्ड हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी कम टू स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टॉक. इस स्टॉक के अंदर क्या होता है? दीज आर द रिसोर्सेज जिनके पास पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने की, बट ह्यूमन बींग्स के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है इन्हें यूज़ करने की. ओके, समझ रहे हैं आप? आई अगैन रिपीट, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास पोटेंशियल है, दे आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. रिजर्व्स की बात करूँ तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्निकल में है, लाइक वी नो हाउ टू यूज़ देम और वी नो हाउ दे कुड बी यूज, बट इनका यूज़ अभी हमने करना शुरू ही नहीं किया है बिकॉज वी आर सेविंग देम फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी. Next, okay, so this is the table. This is the same table which I have explained you earlier. This table is very important on your exam based. So please learn all the definition, all the examples, and all the division of resources on the basis of origin, exhaustibility, ownership, status of development. Okay, so next we talk about development of resources. रिसोर्स को डेवलप कैसे किया जाता है एंड हम करते ही क्यों हैं. सो रिसोर्स हम सबों को पता है दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. अगर ह्यूमन के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वी कांट लिव. ठीक है, एंड एज वी यूटिलाइज देम टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. अगर रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया होता हमने तो हम इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को. फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट. अगर किसी ने जिसने भी कोलगेट या टूथपेस्ट बनाया है, पहले के टाइम पे तो पीपल यूज़ टू ब्रश देयर टीथ विद काउ डंग एंड ऐश. सो इफ़ अगर कोलगेट या टूथपेस्ट किसी भी कंपनी का नहीं बनाया होता तो हमारे पास वो डेवलप्ड रिसोर्स होता ही नहीं. व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू ब्रश आवर टीथ विद दैट काउ डंग और ऐश, राइट. इनका एक्सेसिव यूज़ इज़ ऑल्सो हार्मफुल बिकॉज इससे रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है. इससे जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. हमें जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही रिसोर्स यूज़ करना चाहिए बिकॉज रिसोर्स डिप्लेशन होता है एक्सेसिव यूज़ से. तो पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगी, नई चीज़ों को यूज़ करेगी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, ऑब्वियसली एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्स होगा जिसके अंदर रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है. सेकेंड, ओवर पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा लोग ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अगर फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा बर्न होगा तो फ्यूचर जनरेशन नहीं यूज़ कर पाएगी. माइनिंग एक्टिविटीज़ कर करके जितने भी मिनरल्स हमें मिल रहे हैं हम इन सबों को ले लेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के कैसे काम आएंगे. नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन करके ट्रीज़ को वी आर कटिंग, लाइक. तो अगर हमने ट्रीज़ को कट कर दिया तो मे बी वो भी एक काइंड ऑफ रिसोर्स है हमारे लिए बहुत बड़ा. दे ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ आवर लाइफ्स. तो अगर वो ही नहीं बचेंगे तो रिसोर्स का डिप्लेशन तो होगा ही. नेक्स्ट आता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैव लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. तो अगर रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, राइट, तो उसके लिए कुछ लोगों के पास बिल्कुल कम रिसोर्स बचेगा, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा बचेगा, या कुछ के पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा जो ग्रीड करेंगे उसके लिए दैट वी नीड द रिसोर्स फॉर आवर नीड्स. सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज जब लोगों के पास चले जाते हैं, राइट, रिसोर्सेज अब डिफरेंट काइंड्स के हैं. इन लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है, इन लोगों ने बीच में
वॉल खड़ी कर दी है बिटवीन द रिच कम्युनिटी एंड पुअर कम्युनिटी. हाउ? इफ़ वी टॉक अबाउट AC आजकल सबों के घर में होता है. इफ़ द पर्सन इज़ रिच और इफ़ द पर्सन बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, दे विल ऑब्वियसली कैन अफोर्ड AC. बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ पुअर पर्सन, जिसके लिए इसे लेना बहुत ही ज़्यादा टफ है बिकॉज उसकी इनकम इतनी नहीं है, तो उसके लिए इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेग्रीगेटिंग फ्रॉम रिच कम्युनिटी, बिकॉज उनके पास तो ये रिसोर्स है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, बट पुअर फैमिली के पास ये नहीं है बिकॉज दे can't afford it. Indiscriminate exploitation of resources has led to the global warming, ozone depletion, environmental pollution and etc. ऐसे resources को use करना जो एक्चुअली में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे नेचर को, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, environmental pollution and etc. Therefore, an equitable distribution of resources has become essential. इसलिए ताकि हर किसी को सारे रिसोर्सेज मिले, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. सो इट बिकम नेसेसरी. सो द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है बच्चा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आइडिया है ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है, जो उनकी प्रेजेंट नीड से मिलता है फ्यूचर की नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए. लाइक दे आर यूजिंग इट इन प्रेजेंट, लेकिन वो उन्हें फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो जाए. आप नहीं चाहते कि जो चीज़ें आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो वाली चीज़ें आपकी अपकमिंग जनरेशन भी यूज़ कर पाए. और यू वांट जो रिसोर्सेज आप अभी यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि आने वाली जनरेशन को वापस से प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़े. डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग. सो लोगों ने बोला कि डेवलपमेंट ऐसे होनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें. हमें करनी है डेवलपमेंट, हमें रिसोर्सेज को टर्न करना ही है, तो वाई वुड वी डैमेज द एनवायरनमेंट. सो दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग. Next, we will talk about Rio de Janeiro Earth Summit 1992. So this is the first global gathering on sustainability. ये बहुत बड़ी gathering हुई थी between so many countries. Okay, so इसके अंदर काफ़ी सारी countries ने participate किया था. इस kind of a big seminar जिसमें बात करी थी sustainability के ऊपर कि हम environment को damage किए बिना how we can control the use of resources. So convened for addressing urgent problems of environment protection and socio-economic development at the global level. इसके अंदर क्या हुआ था बच्चा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था एंड दे डिस्कस्ड अबाउट सो मैनी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, इन्होंने बात करी थी इन सब चीज़ों पे. सो द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Next, we come to talk about Agenda 21. So this is kind of a document, or you can say this is kind of a law, Agenda 21, जिसके अंदर Convention adopted Agenda 21 for achieving sustainable development. This is kind of a law जिसके अंदर ये बना ही इसलिए था ताकि sustainable development को achieve कर पाएँ. ये list थी 21 agendas की, like 21 issues जो environment problem को लेके हो रहे थे कि वो लोग इन सब problems और issues को solve कर देंगे by year 2021. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its local Agenda 21. एक major objective रखा गया था Agenda 21 में, which is कि हर local government को, that every local government should draw its own local Agenda 21. हर local government को उसको खुद का Agenda 21 बनाना पड़ेगा, which can be local. Okay, so next we talk about resource planning. रिसोर्स प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करें उसका प्लान बनाया जाता है बच्चा, या फिर उसे अरेंज किया जाता है. क्वेश्चन, डज इंडिया नीड रिसोर्स प्लानिंग? इफ़ येस देन वाई. क्यों चाहिए इंडिया को रिसोर्स प्लानिंग, और अगर येस देन वाई. इंडिया के पास बच्चा बहुत सारी डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की, ठीक है. इंडिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, एंड देयर आर सम रीजन्स जिनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है इन रिसोर्सेज की, ठीक है. तो इन्हें भी रिसोर्स प्लानिंग चाहिए ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग ऑल द
ऑल द रीजन्स। कुछ रीजन्स के अंदर लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, बट किसी के पास एक्यूट शॉर्टेज है।